Hello class A students, today we will discuss the topic colonialism and the city, the story of an imperial capital. This is lesson number 6 of your history. What happened to cities under colonial rule? You have seen how life in the countryside changed after the establishment of British power. What happened to cities under colonial rule? You have seen how life in the countryside changed after the establishment of British power. What happened to the cities during the same period? The answer will depend on the kind of town or city we are discussing. The history of a temple town like Madurai will not be the same as that of the manufacturing town like Dhaka or a port like Surat or towns that simultaneously served many different functions. जो कॉलोनियल रूल जब एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में तो जो विलेज लाइफ थी वो कैसे बदली ब्रिटिश पावर के अंडर, तो हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इसका जो आंसर है ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है कि कैसे वो टाउन थे, कैसी सिटीज थी. वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ ए टेम्पल टाउन लाइक मदुरई. मदुरई जो एक टेम्पल टाउन था, मंदिरों का शहर था, उसकी हिस्ट्री. ढाका जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग टाउन था और सूरत जो कि एक पोर्ट टाउन था, बंदरगाह था, वहाँ पर उनकी सेम नहीं होगी. इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज emerged with industrialization. In Britain, industrial cities like Leeds and Manchester grew rapidly in the 19th and 20th century. As more and more people sought jobs, housings, and other facilities in these areas, however, unlike Western Europe, Indian cities did not expand as rapidly in the 19th century. And why was this so? अच्छा आप अभी सोमन भी आते हैं. नहीं कोई बात नहीं. The most splendid capital of all was built by Shah Jahan. Shahjahan was begun in 1639 and consisted of a fort palace complex and the city adjoining it. Lal Killa or the Red Fort, made of red sandstone, contained the palace complex. To its west lay the walled city with 14 gates. The main streets of Chandni Chowk and Faj Bazaar were broad enough for royal processions to pass. A canal ran down the centers of a Chandni Chowk. तो सबसे जो शानदार जो शहर था वो शाहजहां ने बनाया था. शाहजहांबाद 1639 में बनना शुरू हुआ. एक किले का पूरा महल का कॉम्प्लेक्स था और साथ में शहर था. लाल किला और रेड फोर्ट जो कि लाल पत्थरों से बना हुआ था, ये पैलेस कॉम्प्लेक्स था. इसके वेस्ट में पश्चिम किनारे पर वॉल्ड सिटी थी, जो वो सिटी जो वॉल से दीवार से घिरी हुई थी. उसमें 14 गेट्स थे. जो मेन स्ट्रीट थी चांदनी चौक की और फैज बाजार की, वो इतनी चौड़ी सड़कें थी कि वहाँ से शाही जुलूस वगैरह जो थे वहाँ से पास हो जाते थे. अ कैनल रैन डाउन द सेंटर्स ऑफ चांदनी चौक. Set amidst densely packed mohallas and several dozen bazaars, the Jama Masjid was among the largest and the grandest mosques in India. There were no place higher than this mosque within the city. Then, तो आप देख रहे हो कि जो घने शहर बहुत इकट्ठे कंजस्टेड बने हुए थे मोहल्लास, और उनके बहुत सारे बाजार थे वहाँ पर. जामा मस्जिद जो थी सबसे लार्जेस्ट, बड़ी और ग्रैंडेस्ट मॉस्क इन इंडिया, सबसे बड़ी और शानदार मस्जिद है इंडिया की, और इससे बड़ा कोई भी प्लेस नहीं था देन दिस मॉस्क within the city. Delhi during the Shahjahan time was also an important center of Muslim culture, Sufi culture. It had several dargahs, khanqahs and eidgahs. And here we will study about that.
दरगाह was a tomb of a Sufi saint. सूफी जो साधु थे उनके मकबरों को दरगाह बोलते हैं. खानका is a Sufi lodge often used as a rest house for travelers and a place where people come to discuss the spiritual matters, get the blessings of saints and hear Sufi music. सूफी लॉज था खानका, जिसमें एक रेस्ट हाउस होता था यात्रियों के लिए और एक प्लेस जगह जहाँ की लोग आकर के डिस्कस करते थे स्पिरिचुअल मैटर्स, स्पिरिट्स रिलेटेड और सेंट्स वगैरह की ब्लेसिंग्स लेते थे, सूफी म्यूजिक सुनते थे. ईदगाह एक ओपन प्लेस था जहाँ पर मुस्लिम्स का खुली जगह जहाँ वो ईद की प्रेयर्स करते, प्रार्थना करते थे. And cul-de-sac was the street with the dead end. ऐसी गली जहाँ पर आगे कोई और गली ना हो. Open squares, winding lanes, quiet cul-de-sac and water channels were the pride of Delhi's residents. No wonder the poet Mir Taqi Mir said, streets of Delhi are not mere streets, they are like the album of a painter. Yet even this was no ideal city and its delights were enjoyed only by some. There was sharp division between rich and the poor. Havelis or mansions were interspersed with the far more numerous mud houses of the poor. The colorful world of poetry and dance was actually enjoyed only by men. Furthermore, celebrations and processions often led to serious conflicts. तो जो दिल्ली था ये एक आइडियल सिटी थी, बट इसकी जो शानदार दिल्ली को वही एंजॉय कर सकता था जो कि अमीर और अच्छे वर्ग से संबंध रखता था. रिच, अमीर और गरीबों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. हवेलीज या मैंशंस, जो बड़े बड़े महल जैसे नुमा घर जो थे, उसके चारों तरफ छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे मड हाउसेस थे. एंड दैट वर ऑफ पुअर्स. द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ पोइट्री और डांस जो था वो मैन ही एंजॉय करते थे. सेलिब्रेशंस एंड प्रोसेशन, जो वो सेलिब्रेशंस, त्योहार और जो जुलूस जो होते थे उनमें ज़्यादातर सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हो जाते थे. और मीर ताकी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि जो दिल्ली की गलियां जो हैं वो गलियां ही नहीं है, वो एक पेंटर की एल्बम की तरह है. तो दिस वाज सो ब्यूटीफुल दिल्ली हियर. द श्राइन ऑफ निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली. एंड दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतकाब, ये आप पढ़ रहे हैं, जो 1739 में दिल्ली को नादिर शाह ने कई बार लूटा और एक्सप्रेसिंग द सॉरो ऑफ दोज हु विटनेस द डिक्लाइन ऑफ द सिटी. जो इस शहर का जो पतन कई लोगों ने जो देखा उस पर दुख जाहिर करते हुए मीर तकी ने कहा, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतकाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े द्यार के. तो आई बिलोंग टू द सेम रूइन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. वो जो उजड़ गया दिल्ली, उसके हम निवासी हैं. विच वॉज वंस अ सुप्रीम सिटी इन द वर्ल्ड. द मेकिंग ऑफ द न्यू दिल्ली. In 1803, the British gained control of Delhi after defeating the Marathas. Since the capital of British India was Calcutta, the Mughal emperor was allowed to continue living in the palace complex in the Red Fort. The modern city as we know it today developed only after 1911 when Delhi became the capital of ब्रिटिश इंडिया. 1803 में ब्रिटिश ने इंडियन दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया था, मराठास को हरा दिया था, और तब जो थी ब्रिटिश कैपिटल वाज एट कलकत्ता. तो जो मुगल एम्पायर था वो अभी भी वहाँ पर दिल्ली में ही रह रहा था, रेड फोर्ट में. और जो मॉडर्न सिटी जो दिल्ली की हम आज जानते हैं वो ब्रिटिश इंडिया की, वो हम बाद में पढ़ेंगे. डेमोलिशिंग का पास्ट. तो हियर डेमोलिशन स्टार्ट मीन्स की उसका कैसे नई
प्राचीन दिल्ली को ख़त्म कर दिया गया और नई दिल्ली एस्टेब्लिश